Dear student, class 12th, subject chemistry, chapter chemical kinetics. Dear student, at this chapter, we are going to study the rate of a reaction, means average reaction and instantaneous reaction, factor affecting the rate of reaction, concentration, temperature, catalyst, order and molecularity of a reaction, rate law and specific rate constant. Dear student, at this chapter, chemical kinetics, the study of chemical reaction is very interesting for the chemist. They are always interested in understanding different aspects of a chemical reactions. There are following five main aspects related to the study of reaction. It is feasible of a chemical reaction which can be predicted by thermodynamics. As we know, thermodynamics tells us for a feasible reactions, del G means free energy would be negative at a constant temperature and pressure. The extent to which a reaction will proceed and can be determined by chemical equilibrium, speed of a reaction, time taken by a reaction to reach equilibrium, factor affecting the speeds, mechanism of reaction, intermediate steps involved to reach the final product. So we can say that third, fourth, and fifth aspect of chemical reaction are answered by branch of chemistry called chemical kinetics. That word means chemical kinetics derived from Greek word kinesis mean movement, means the branch of physical chemistry which deal with the study of speed or rate of chemical reaction. The factor affecting the rate of reactions and the mechanism by which the reactions proceed is known as chemical kinetics. Dear student, केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस के मोड की स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से केमिकल रिएक्शंस की परफॉर्मेंस या एकम्प्लिशमेंट की ओर अटेंड करता है या अट्रैक्ट करता है। डियर स्टूडेंट, किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड वो 5 पॉइंट जो हमें अट्रैक्ट करते हैं उनमें से फर्स्ट, feasibility of chemical reactions can be predicted by thermodynamics. What is the thermodynamics? Thermo means temperature, dynamics means movement. As we know, thermodynamics tells us that for a feasible reaction where the del G would be negative at constant temperature and pressure, the extent to which a reaction will proceed can be determined by chemical equilibrium. What is the speed of reaction? Means what time taken by a reactions to reach equilibrium. Which factor they are responsible for the accomplishment of reactions and their speed, means many factors affecting the speed. What are the reaction of mechanism? Intermediate step involved to reach the final product, means speed of reaction, factor affecting to the speed and mechanism of reactions एस्पेक्ट अ केमिकल रिएक्शन आर आंसर्ड, मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड क्या होगी, मीन्स पर्टिकुलर उस केमिकल रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम सेटअप होने के लिए या इक्विलिब्रियम में इंसर्ट होने में कितना टाइम उसके द्वारा टेकन किया जाएगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो पर्टिकुलर रिएक्शंस की स्पीड को मॉनिटर या रेगुलेट करेंगे, और किस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन एकम्प्लिश होगी। क्या रिएक्शंस इंटरमीडिएट स्टेप्स के द्वारा कंप्लीट होगी या डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट के द्वारा कंप्लीट होगी। डियर स्टूडेंट, जहाँ पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड, उन सभी फैक्टर्स जो उस स्पीड को रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं और वह मैकेनिज्म जिसके द्वारा रिएक्शन एकम्प्लिश होती है, इन सभी फैक्टर्स के अकॉर्ड जब हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तब वो ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। मीन्स केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जहाँ पर हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं।
डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस से रिलेटेड, उन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड, केमिकल चेंज होने का रेट, वो सभी फैक्टर्स जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड या रेट को अफेक्ट करते हैं, और केमिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म, इन सभी फैक्टर्स की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में परफॉर्म की जाती है वो केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। मीन्स केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की स्पीड या रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर और उस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की स्टडी की जाती है, उसे केमिकल काइनेटिक्स के नाम पर जाना जाता है। Dear student, different chemical reactions occur at different rate. On the basis of rate, chemical reactions are broadly divided into three categories. Dear student, हर chemical change एक निश्चित टाइम इंटरवल पर कंप्लीट होता है। मीन्स पर्टिकुलर रिएक्शंस की स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शंस के बेस पर हम इस केमिस्ट्री में होने वाले रिएक्शंस को थ्री टाइप में क्लासीफाई करते हैं, या हम इन्हें ब्रॉडली डिवाइड करके तीन कैटेगरी बनाते हैं। पहली है वेरी फास्ट रिएक्शंस, सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन। मीन्स दीज रिएक्शंस दैट आर फास्ट रिएक्शन occur at very fast rate. Generally, these reactions involve ionic speeds, ionic species, and thus known as ionic reactions. These reactions take about 10 to power minus 14 to 10 to power minus 16 second for a completeness. डियर स्टूडेंट, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो बहुत ही लीस्ट टाइम कंज्यूम करती हैं और एकम्प्लिश हो जाती हैं, ऐसी रिएक्शंस वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में अरेंज की जाती हैं। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिसमें डिफरेंट आयनिक स्पीसीज पार्टिसिपेट करती हैं, मीन्स आयंस के बीच में केमिकल चेंज परफॉर्म होता है, इनके द्वारा कंज्यूम किया गया टाइम 10 टू पावर माइनस 14 से 10 टू पावर माइनस 16 पर सेकंड होता है। ऐसी लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम या ऐसे लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में फास्ट रेट से कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस वेरी फास्ट रिएक्शंस के नाम पर जाने जाते हैं। जैसे वी रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं, तब ये वेरी फास्ट रेट पर रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। क्यों? एसिड रिलीज द हाइड्रोजन आयन and base release the hydroxyl ion, so it's are the reactions of exchange of ions, means ionic reactions. BaCl2 plus H2SO4 form the BaSO4 and HCl, where hydrogen HCl produce the hydrogen and chlorine ion, sodium hydroxide produce sodium and hydroxyl ion. These ions are exchanged to each other and perform the ionic reaction in a very fast rate of reaction. इसी तरह BaCl2 और H2SO4 मीन्स बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब आयनिक एक्सचेंज होता है, बिकॉज BaCl2 डिकम्पोज एंड परफॉर्म रिलीज द Ba2 प्लस एंड SO4 माइनस, बोथ आर exchange to ion with each other and perform the ionic reactions in very fast way. Second are very slow reactions. Dear student, these reactions are certain reactions which are extremely slow. These reactions may require months or even years together for their completion. For example, rusting of iron. Dear student, हमारे इस नेचर पर बहुत सारी रिएक्शंस बहुत सी स्लो रेट पर परफॉर्म होती हैं। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जो एक्सट्रीमली स्लो होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं, तब जाकर क्या होती हैं, एकम्प्लिश होती हैं। मीन्स ऐसे केमिकल चेंजेस जिनको एकम्प्लिश होने में मंथ्स या ईयर का टाइम लगता है, उन्हें हम वेरी स्लो रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन या शुगर का फर्मेंटेशन। मीन्स आयरन react with moisture and atmospheric content and form the oxide, sulfide and chlorides or hydroxide that are called the rusting or corrosion of metals. When iron are exposed in the atmospheric content, react with atmospheric content and form the impurities or unwanted compounds, that is called rusting. Rusting is a slow process. It is accomplished duration of time just like month or years. Second is the
fermentation. Dear student, fermentation is a biological process where sugar material are decomposed in presence of any living organism or enzymes to produce different type of consecutive product. Means जब हम शुगर को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी एंजाइम की प्रेजेंस में एनारोबिक रेस्पायरेट या एनारोबिक डीकम्प ऑक्सीडेशंस को परफॉर्म करवाते हैं, तब हमें इथिलाइल अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। मीन्स एक कुछ ऐसी रिएक्शंस जो मंथ या ईयर्स में कंप्लीट होती हैं, उन्हें वेरी स्लो रिएक्शंस की कैटेगरी में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। थर्ड आर द मॉडरेट रिएक्शंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। मीन्स ना तो ऐसी रिएक्शंस जो ना तो बहुत ही फास्ट होती हैं और ना ही बहुत स्लो होती हैं। There are a number of reactions which take place a moderate and measurable rate at room temperature, and it is the reaction which are studied in detail in chemical kinetics. Dear student, बहुत सारी reactions ऐसी हैं जो मॉडरेट या मेजरेबल रेट पर परफॉर्म होती हैं, जिसे हम रूम टेम्परेचर पर मेजर कर सकते हैं और वो मॉडरेट रेट को फॉलो करती हैं। ऐसे रिएक्शंस को मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे एथाइल एसीटेट का हाइड्रोक्सी में जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिटाइल एसीटेट का, तब एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। या हम जब सुक्रोज जैसे मटेरियल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं या अमोनियम नाइट्रेट का हम डीकम्पोजिशंस करते हैं, तब ऐसी रिएक्शंस मॉडरेट रेट पर परफॉर्म होती हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट्स 3 टाइप की कैटेगरी में कैटेगराइज की गई। ऐसी रिएक्शंस जो बहुत ही फास्ट रेट पर होती हैं, जिनके द्वारा कंज्यूम किया गया टाइम 10⁻14 टू 10⁻16 पर सेकंड होता है। ऐसी फास्ट वे पर या फास्ट एक्सटेंट पर होने वाली रिएक्शंस को हम वेरी फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। सेकंड कैटेगरी में वेरी स्लो रिएक्शंस को कैटेगराइज किया गया। ऐसी रिएक्शंस जो मंथ या ईयर्स में जाकर कंप्लीट होती हैं, उन्हें वेरी स्लो रिएक्शंस की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन और फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। सम रिएक्शन आर मॉडरेट रिएक्शन, इट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जो ना तो बहुत स्लो होती हैं ना ही बहुत फास्ट। ऐसी रिएक्शंस जो मॉडरेट रेट पर होती हैं, जिसे अपने रूम टेम्परेचर पर मेजर किया जा सकता है जिस रिएक्शंस के रेट को, ऐसी मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस कराती हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, रीजन फॉर डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट केमिकल चेंज अलग अलग रेट या अलग अलग टाइम ऑफ इंटरवल में क्यों परफॉर्म होते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस सिंस different bond requires different amount of energy for breaking and different amount of energy are evolved when different kind of new bond are formed. The rate of different reaction are different. Ionic reactions are very fast because no bond are required to be broken because ion are already present in the solution. Another reasons for the difference in the rate of reactions in term of activation energy will be discussed later in this unit. Dear student, केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट केमिकल कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं। उन ब्रेक डाउन होकर वो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाते हैं। मीन्स डिफरेंट बॉन्ड्स को डिसोसिएट करने के लिए डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर दैट, जब ये बॉन्ड या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आपस में फिर से एसोसिएट होते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तब एनर्जी इवॉल्व होती है। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शंस के एकम्प्लिस होने में बॉन्ड का डिसोसिएशन या ब्रेक होना और उन डिसोसिएटेड मटेरियल का री बॉन्ड फॉर्म करना ही प्रोसेस होती है। अलग अलग बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि उन्हीं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फिर से न्यू बॉन्ड फॉर्म करके न्यू एलिमेंट न्यू कंपाउंड डेवलप करने में फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी के फॉर्म में इवॉल्व होती है। मीन्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बेस पर ब्रेक डाउन होता है, डीकम्पोजिशन होता है और री एसोसिएशन होता है। इस कारण से अलग अलग रेट पर रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। जैसे यदि आयनिक रिएक्शंस की बात की जाए तो ये बड़े फास्ट वे पर परफॉर्म होती हैं। क्योंकि यहाँ आयंस पहले ही सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होते हैं।
पर्टिकुलर वो कंपाउंड्स के फॉर्म में ना होने के कारण उन्हें डिकम्पोज या ब्रेक डाउन करना नहीं पड़ता, इसलिए रिएक्शंस फास्ट वे पर होती हैं। एक रीज़न और है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, reaction of chemical reaction, rate of chemical reaction, it means the speed with which the reaction take place. Just as the speed of vehicle is expressed in term of distance traveled per unit time, as a reaction progresses, the reactant are consumed and the product are formed. Thus, the speed or the rate of chemical reaction can be defined as the change in concentration of reaction, means defined as the change of concentration of reactant or product per unit time. It can be expressed in term of rate of decrease in concentration of any one of the reactant, or the rate of increase in the concentration of any one of the product for a simple hypothetical reactions. Means dear student, किसी केमिकल रिएक्शंस के रेट का मतलब ये होता है कि रिएक्शंस कितने टाइम को कंज्यूम करके एकम्प्लिश होती है। मीन्स जब कोई केमिकल चेंज परफॉर्म होता है, तब उस केमिकल चेंज को परफॉर्म होने में या एकम्प्लिश होने में या उस केमिकल चेंज के कंप्लीट होने में जो भी टाइम कंज्यूम किया जाता है, उसे केमिकल रिएक्शंस का रेट या स्पीड कहा जाता है। जैसे हम व्हीकल की स्पीड को कितनी डिस्टेंस वो व्हीकल पर यूनिट टाइम में कंप्लीट करता है, मीन्स किसी व्हीकल के द्वारा पर्टिकुलर टाइम्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, उसके थ्रू हम उसके स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस कितने टाइम को कंज्यूम करके एकम्प्लिश या कंप्लीट होती है, पर यूनिट टाइम पर जो भी अमाउंट कंप्लीट होता है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शंस में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक डेफिनिट टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल फैक्टर की प्रेजेंस में क्या होते हैं, एक निश्चित टाइम में प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। मीन्स रिएक्टेंट एक निश्चित टाइम के बाद केमिकल चेंज को परफॉर्म करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। वह टाइम जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, वह उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस का रेट या स्पीड कहलाती है। हम कह सकते हैं कि वह पर्टिकुलर टाइम जिसमें रिएक्टेंट का पर्टिकुलर वॉल्यूम डिक्रीज होता है या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और उसी टाइम पर जितना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज होता है, वही रिएक्शंस का पर यूनिट टाइम रेट होता है। मीन्स यदि हम कोई मटेरियल 1 मोल लेते हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में, और वह रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया गया 1 मोल रिएक्टेंट जितने टाइम टी पर उस प्रोडक्ट के 1 मोल में चेंज हो जाता है, मीन्स कोई भी रिएक्टेंट जो कि 1 मोल है, एक निश्चित टाइम के दौरान 1 मोल प्रोडक्ट में चेंज होता है, तब वह लगा हुआ समय या कंज्यूम किया गया टाइम ही उस पर्टिकुलर रिएक्शंस का रेट होता है। मीन्स जब हम रिएक्शंस में डिफरेंट अमाउंट लेते हैं रिएक्टेंट का, वो रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, वो रिएक्टेंट आपस में केमिकल चेंज परफॉर्म करवाते हैं। केमिकल चेंज परफॉर्म होने में लगातार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। वह पर्टिकुलर टाइम या फिक्स टाइम जिसमें 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट में चेंज होता है, वह पर्टिकुलर टाइम उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट या स्पीड कहलाती है। मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। Dear student, the negative sign in the case of expressing the rate of reaction in term of reactant does not mean that rate is negative. It indicates that concentration of reactant decrease. Dear student, हम क्या कह रहे हैं कि हम सपोज देन यदि हमने सर्टेन अमाउंट रिएक्टेंट का लिया, जैसे जैसे केमिकल चेंज परफॉर्म होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की
का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, जिसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ माइनस का मतलब ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस का रेट निगेटिव है। यहाँ माइनस या निगेटिव का मतलब है कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पर प्रोसीड हो रही है या एकम्प्लिश हो रही है, वैसे वैसे केमिकल चेंज फास्ट परफॉर्म होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे केमिकल रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन पर प्रोसीड होगी, पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन पर टाइम। मीन्स वह टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, और वह टाइम जिसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और वह टाइम जिसमें एक मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, वह पर्टिकुलर टाइम रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। मीन्स कंसंट्रेशन पर टाइम जो भी चेंजेस होते हैं उसे हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। इफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर एंड टाइम इज सेकंड। डियर स्टूडेंट, यदि हम लिए गए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेते हैं और पर्टिकुलर चेंज को परफॉर्म करने में जो टाइम कंज्यूम किया जाता है वो सेकंड में है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड हो सकती है। Dear student, gaseous reactions when the concentration of gas is term of their partial pressure, the unit of the rate of reactions to be atmospheric per second. The relationship between partial pressure of a gas in reaction mixture and its molar concentration is there. So dear student, यदि हम गैसियस रिएक्शंस को परफॉर्म करा रहे हैं तो गैसियस रिएक्शंस के एकम्प्लिश होने में या गैसों के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने में पार्शियल प्रेशर का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। यदि पार्शियल प्रेशर रिएक्शन में इन्वॉल्व है तब उसकी यूनिट एटमॉस्फेरिक पर सेकंड हो सकती है। चलिए रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं पार्शियल प्रेशर किसी गैस के पार्शियल प्रेशर में और वह मिक्सचर जहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन में, और देखते हैं क्या गैसेस इक्वेशंस कहता है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी, एन बाई वी इक्वल टू क्या है कंसंट्रेशन है मोल पर वॉल्यूम, तो क्या निकला पी इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी। एन बाई वी की जगह आप कंसंट्रेशन सी को रिप्लेस कर सकते हैं, देन क्या निकला पी इक्वल टू डेल सी इंटू आर टी। यदि हम इसे टाइम पर क्या कर देते हैं, टाइम को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो तब डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू डेल सी बाई डेल टी इंटू आर टी। अब अपन इसका रेट निकालते हैं, तो एटीएम पर सेकंड इक्वल टू रेट इन मोलरिटी पर सेकंड इंटू आर टी। Dear student, after that we are going to study method to write expression for rate of reaction. In order to follow the concept for writing the mathematical expression for the rate of reactions, consider the following cases. चलिए डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। First, reactions involve same stoichiometric coefficient of all reactant and product. Consider the gaseous reactions between nitric oxide and ozone. Dear student, यदि हम नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन के बीच में केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं, NO react with O2, O3 and produce the product नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग सेम स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट, चाहे वो कोफिशिएंट रिएक्टेंट के लिए हो या प्रोडक्ट के लिए हो। इन दिस केस जो स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मीन्स नंबर ऑफ जो मोल्स हैं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या हैं, सेम है। सो द रेट ऑफ रिएक्टेंट में बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन, or alternatively by the rate of appearance of nitrogen dioxide or oxygen. Thus rate of reactions is as follow. समझिए डियर स्टूडेंट, हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी कर रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ कंसंट्रेशन या स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, एग्जैक्ट इक्वल या बराबर हैं।
तब हमने क्या देखा, हमने नाइट्रस ऑक्साइड लिया और ओजोन लिए, इनके डेफिनेट मोल लिए और इतने ही मोल हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए। अब यदि हम ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट और रिएजेंट दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स का कंसंट्रेशन है वो सिमिलर है या समान है, तब हम क्या देखते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन के कंसंट्रेशन में जो डिसअपीयरेंस दिखाई देता है, इस टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शंस को काउंट कर सकते हैं, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में जो अपीयरेंस या एक्सेस दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्ड हम केमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शन जो स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट में सेम हो, मीन्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सिमिलर मोल्स में लिए जाएं, तब हम कह सकते हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन के बीच की रिएक्शंस, तो कितना अमाउंट नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन का डिक्रीज हो रहा है और कितना अमाउंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इंक्रीज हो रहा है, इस बेस पर हम ऐसी रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शंस को काउंट कर सकते हैं। सेकंड है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट, हम ऐसी गैसियस रिएक्शंस को यदि परफॉर्म करा रहे हैं जहां पर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, देन वी फाइंड दैट रेट ऑफ डी अपीयरेंस इज सेम बट अपीयरेंस ऑफ इज ट्वाइस कंपेयर टू देम। चलिए एक रिएक्शन को पहले इस पर लॉन्च करते हैं। सपोज देन हमने हाइड्रोजन गैस ली, आयोडीन ली, दोनों के बीच में रिएक्शंस करवाई, H2 + I2 = 2HI। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि H2 और I2 एक एक मोल्स जब डिसअपियर होते हैं तब प्रोडक्ट के 2 मोल HI प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स प्रोडक्ट और रिएजेंट के मोल में क्या है, डिफरेंस है। Now in order to avoid the difference in the two rates, to get a unique value of the reactant rate irrespective of the species selected, we divided the rate of change of concentration by the stoichiometric coefficient of reactant or product involved in the reaction, thus in the case of considered. So dear student, after that we are going to study the average rate and instantaneous rate of reaction. Dear student, average rate and instantaneous rate. The rate expression so far give the average rate of reactions over the time interval. This may be expressed as. Dear student, यदि हम किसी रिएक्शंस के रेट को क्या करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। अब जो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि जो आपने टाइम इंटरवल लिया, चाहे सेकंड में या मिनट्स में, आवर्स में या डेज में, उनमें जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है प्रोडक्ट का। मीन्स रिएजेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के इंक्रीजमेंट में जो भी टाइम इंटरवल लिया जाता है या जो भी टाइम कंज्यूम किया जाता है, वही रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू मैकेनिकल स्पीड। यह पर्टिकुलर फार्मूला मैकेनिकल स्पीड की तरह है। सपोज एन एग्जाम्पल लेते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ अ कार कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय नोइंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट गिवन टाइम। इफ कार कवर्ड 200 किलोमीटर इन 4 hours, its average speed distance by time is 15 km/h. During the journey, the driver can look from the speedometer that the speed keeps on changing depending upon the traffic, road condition, weather. The needle on the speedometer indicate speed at particular instant of time. Instantaneous speed, which may be vary from 10 km/h to 140 km/h for a chemical reaction. Dear student, समझते हैं किसी केमिकल रिएक्शंस का रेट का मतलब है कि पर्टिकुलर टाइम में कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। मीन्स पर्टिकुलर टाइम में कितना डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में और उसी टाइम पर कितना इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में। जो भी ये इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट पर्टिकुलर टाइम पर टेकन किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। मीन्स जो भी कंसंट्रेशन में चेंजेज आते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, वो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। यह उसी तरह है जैसे मैकेनिकल स्पीड होती है। मान लीजिए आप किसी कार से
आप ट्रेवल कर रहे हैं, कार की स्पीड 200 किलोमीटर है और और आप 4 घंटे में 200 किलोमीटर जाते हैं। आप जनरली ये आइडिया लगाते हैं कि आपकी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर है। जब आप जर्नी पर होते हैं तो आपका ड्राइवर बार बार स्पीडोमीटर की ओर कंसंट्रेट करता है और वो क्या देखता है कि उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, कभी अप होती है कभी डाउन होती है। वो अपनी स्पीड ट्रैफिक, रोड कंडीशन और वेदर के अनुसार चेंज करता है। उस पर्टिकुलर कार में जो स्पीड चेंज होती है उसे स्पीडोमीटर की नीडल बार बार इंडिकेट करती है और वह 10 किलोमीटर पर आवर से 140 किलोमीटर पर आवर्स की रेंज मीन्स इसी रेंज पर वो अपनी स्पीड को कैलकुलेट करता है। जिस तरह हमारी कार एक पर्टिकुलर रेंज पर अपनी स्पीड को मेंटेन करती है, बैरियर्स, ड्राइव, रोड कंडीशन और वेदर के अनुसार अपनी स्पीड को कंट्रोल करती है, वैसी हमारी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं। केमिकल रिएक्शन आल्सो एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द वैल्यू of time. Like instantaneous speed of car, the instantaneous rate of also change. This is due to that fact that case of reaction. जिस तरह डियर स्टूडेंट कार अपनी कंडीशंस के अनुसार रेट को चेंज करती है, उसी तरह केमिकल रिएक्शंस भी डिफरेंट फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती है और उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस का रेट इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रेट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अलग अलग इंटरवल पर पर्टिकुलर रिएक्शंस का रेट लगातार फ्लैक्चुएट होता है या चेंज होता हुआ रहता है। मीन्स हम यदि किसी केमिकल रिएक्शंस का एग्जैक्ट रेट डिटरमाइन करना चाहते हैं तब हम उसे अलग अलग टाइम पर क्या कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं, जिन टाइमों पर अलग अलग कंसंट्रेशन क्या हुआ है, फ्लैक्चुएट या चेंज हुआ है। सो एज अ सच कंडीशन called instantaneous rate means the rate of change of concentration of any one of the reactant or product at that particular instant of time। जब हम पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस की अलग अलग टाइम पर होने वाली चेंजेस को हम मेजर करते हैं तब हम देखते हैं कि अलग अलग इंटरवल पर या टाइम पर चेंजेस जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है वो अलग अलग या डिफरेंट होता है। यदि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन में हो रहे चेंज की स्टडी करते हैं तब ये इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। यदि हम मानते हैं कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में एक्स अमाउंट पर्टिकुलर टी टाइम पर चेंज होता है तो जो भी अमाउंट उस पर्टिकुलर टाइम पर चेंज हो रहा होता है वो एक्टिव मास कहलाता है और उस टाइम पर उसे ही हम नाम देते हैं क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन। आफ्टर दैट experimental determination of rate of reaction. The rate of reactions can be measured by plotting a graph between the concentration of any reactant or product as a function of time. General any property which is related to concentration of one of the species taking part in the reaction is selected and then change in the property is measured as a function of time. The commonly measurable property are volume change, pressure change, change in the thermal or electrical conductivity, change in optical rotation, change in color, pH or reflective index. The average rate is calculated by taking 2 points on the axis of time. The difference in concentration corresponding to these points is calculated. The difference of concentration is then divided by the time interval between the selected equidistance point. So we can say that reaction can be easily studied by measuring the concentration of different reactant and product in a particular time. After that, we are going to study the factor affecting rate of reaction. Rate of reaction is influenced by a number of factors. Some of simple and important factors that are: first is the concentration of reactions, second is the effect of temperature, nature of reactant and product, effect of radiation, presence of catalyst, and the pressure. So, dear student, many factors and important factor which are affected the rate of reactions are that first is the concentration of reactant. Dear student, concentration of reactant. The rate of reaction depend upon the concentration of reactant. The concentration depend upon the reaction rate provide valuable information with respect to the kinetic reaction.
Generally, the rate of reaction increase with increased concentration of reactant. The rate get doubled by doubling the concentration of reactant for a first order reaction. In increase in the concentration of reactant, increase the number of particles in a given volume, increase the effective collision rate of molecules. The higher frequency of collision result in the higher rate of reactant. Dear student, किसी रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो पार्ट होते हैं। जैसे जैसे हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से उन पर्टिकुलर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन्स करते हैं आपस में। इफेक्टिव कोलिजन्स के कारण प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीन्स हम जैसे जैसे पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हुए जाते हैं, वैसे वैसे रिएक्शंस का रेट इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, but for all those reactions which are exothermic, the rate of reactions decrease with rise of temperature. Generally, it is observed that the rate becomes double with 10-degree rise in temperature. The rate of endothermic reaction increase with the rise in temperature. डियर स्टूडेंट, जैसे हम किसी रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज करते हैं, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं, मीन्स कोलिजन्स का रेट इंक्रीज होता है, इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, मीन्स प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीन्स जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, वैसे ही रिएक्शंस का रेट इंक्रीज हो जाता है। डियर स्टूडेंट, माना तो ये भी जाता है कि जैसे हम केमिकल रिएक्शंस का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं, वैसे ही उसका रेट डबल हो जाता है। बट आप जानते हैं रिएक्शंस टू टाइप की होती हैं, सम आर एक्जोथर्मिक एंड सम आर एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शंस जो एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, जबकि ऐसी रिएक्शंस जो एक्जोथर्मिक नेचर की होती हैं, ऐसी एक्जोथर्मिक नेचर वाले रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शंस का रेट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल नेचर, एज द particle size decrease, surface area for the same mass increase, the smaller particle therefore react more rapidly than the larger particle. डियर स्टूडेंट, जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं या कर रहे हैं, उनका फिजिकल नेचर कैसा है, रिएक्शंस का रेट फिजिकल नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा होता चला जाता है, उसकी एक्टिव सरफेस इंक्रीज होती चली जाती है और वो रिएक्शन में फास्ट वे पर पार्टिसिपेट करता है। मीन्स ऐसे रिएक्टेंट जिनका जिनका फिजिकल नेचर मीन्स जिनके पार्टिकल का साइज स्मॉल है, वो रैपिडली रिएक्शन करते हैं और रिएक्शंस के रेट को बढ़ाते हैं। जैसे wood saving having greater surface area burn more rapidly than the logs of wood. Homogeneous reactions are faster than heterogeneous reaction. Next है chemical nature of reactant. In a chemical reaction, bond of reactant are broken and that product are formed. The rate of reactant depend upon the number of and nature of bond the reactant. Dear student, जब रिएक्टेंट आपके बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं, तब मालिक एटम्स फ्री होते हैं, तब जाकर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। मीन्स किसी रिएक्शंस का रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें बॉन्डिंग किस तरह की है, बॉन्ड का नेचर कैसा है, बॉन्ड स्ट्रांग है या वीक है। यदि बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लेट टूटेगा, जिससे पार्टिकल लेट रिमूव होंगे और केमिकल रिएक्शंस का रेट क्या होता जाएगा, स्लो होता चला जाएगा। द टू रिएक्टेंट डिफर इन द नेचर ऑफ बॉन्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी। द फर्स्ट रिएक्शंस फेयरली रैपिडली बिकॉज ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन मे बी स्पीड अप by the absorption of photon for suitable radiation absorbed by reactant energy. मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो सर्टेन फोटॉन को ऑब्टेन करके परफॉर्म होती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं, उन्हें फोटो केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है।
मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन में सन अमाउंट ऑफ सनलाइट या अमाउंट ऑफ रेडिएशन या अमाउंट ऑफ फोटॉन जो कि उस पर्टिकुलर रिएजेंट्स के द्वारा या रिएक्शंस के दौरान एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो तय करते हैं कि रिएक्शंस का रेट क्या होगा। सपोज देन हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की स्टडी कर रहे हैं। यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शंस अंधेरे में परफॉर्म कराई जाती है तब रिएक्शंस का रेट स्लो होता है, जबकि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शंस सनलाइट की प्रेजेंस में परफॉर्म कराई जाती है तब इसका रेट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में H2 और Cl2 दोनों यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, निश्चित अमाउंट में फोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्शंस का रेट फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तब वह रिएक्शंस के रेट को अल्टर कर देता है। कैटलिस्ट यदि पॉजिटिव है तो रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देगा, कैटलिस्ट यदि निगेटिव है रिएक्शंस के रेट को घटा देगा। और ये सारा रिएक्शंस के रेट को घटाना, बढ़ाना या इक्विलिब्रियम को सेटअप करना कैटलिस्ट किस तरह करता है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कंट्रोल करता है और रिएक्शन के रेट को अपने नेचर के अकॉर्ड इंक्रीज, डिक्रीज या सेम रखता है। लास्ट फैक्टर है प्रेशर। यदि रिएक्टेंट गैसेस फेज में है तब गैसेस फेज वाले या गैसेस स्टेज वाले रिएक्टेंट पर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तब सिग्निफिकेंट रोल फॉलो करता है यह प्रेशर में। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, कैसे जो गैसेस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया जाता है वैसे वैसे गैसियस रिएक्शंस का रेट इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट rate expression and rate constant. When a chemical reaction proceeds, the reactant get converted into product. As a result, the concentration of reactant decrease while the product concentration increase. The general behavior of the concentration of reactant and product means जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं तब हमें दो चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे ही केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है वैसे ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में कंसंट्रेशन के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होता है, किन किन फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मॉस एक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैज़ बीन गिवन बाय टू केमिस्ट गुलबर्ग एंड बागे 1864 in form of law of Moss action. According to this law, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactant with each term raised to the power of its coefficient. Dear student, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं और हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे स्पीसीज के कंसंट्रेशन मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तब गुलबर्ग और बागे के द्वारा लॉ ऑफ मॉस एक्शन प्रपोज किया गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मॉस एक्शन में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशंस के या रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस के। मीन्स एक निश्चित टाइम के बाद जो भी एक्टिव मास होता है मीन्स वह अमाउंट या वह मोलर कंसंट्रेशन रिएजेंट का जो प्रोडक्ट में चेंज होता है वो उसका एक्टिव मास कहलाता है। means the rate of constant of a rate of a given temperature may be defined as means यदि हम किसी टेम्परेचर प्रेशर की प्रेजेंस में हम मोलर कंसंट्रेशन में लगातार चेंज करते हैं मीन्स मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है रिएक्टेंट का और इंक्रीज होता है प्रोडक्ट का। तो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी मीन्स एक पर्टिकुलर मोलर कंसंट्रेशन या वॉल्यूम रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा, वही पर्टिकुलर मोलर कंसंट्रेशन मॉस एक्टिव मॉस कहलाएगा और उसी पर्टिकुलर टाइम पर ये चेंज होगा। रेट कांस्टेंट इज मेजर ऑफ रेट रिएक्शन।
लार्जर द वैल्यू आपके फास्टर इज द रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, जो हमने रेट कांस्टेंट के निकाला है, इसका मतलब है कि हम रेट के रिएक्शंस के रेट को काउंट कर रहे हैं। यदि कांस्टेंट की वैल्यू लार्जर है तो रेट का रिएक्शंस का रेट ज़्यादा है, और यदि कांस्टेंट की वैल्यू लोअर है या स्लो है तो रिएक्शंस रेट भी क्या है, स्लो है। चलिए डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में में क्या डिफरेंस होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मीन्स एक यूनिट टाइम पर या पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज होता है, यह अमाउंट ऑफ चेंज ही रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। It is depend upon the initial concentration of the reactant. Its unit are always same. Dear student, किसी भी रिएक्शंस का रेट उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन पर क्या होती है, बढ़ती है, वैसे ही क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुका होता है। जबकि रेट कांस्टेंट इट इज इक्वल टू द रेट रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। डियर स्टूडेंट, रेट कांस्टेंट वो है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो चेंज हो रहा हो वो मोलर वॉल्यूम या मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में चेंज हो रहा हो। रेट कांस्टेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपके रिएक्टेंट का क्या है। इट्स यूनिट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। मीन्स रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पर वर्क करता है। द लॉ ऑफ मॉस एक्शन stated above is a purely theoretical concept. In this, rate expression is given on the basis of overall balance equation for the reactions. So, dear student, रेट लॉ कहता है इट इज एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच टर्म रेज टू द पावर which may be or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in balanced chemical reaction. Dear student, after that we are going to study order of a chemical reaction.